Yeah. So, welcome to the second class on business, maths, mathematics of finance. And the topic for today is going to be bond valuation. I have already told you that we are technically on the application side of the ordinary annuity. So, let's see what is bond valuation and how do we calculate that. Just like in our last class, we discussed that for amortization of a loan, I am going to pay an installment. An installment is going to be a combination of two things. One part of it is the interest that I am paying towards the outstanding principal, plus the other part of it is going to be my payment towards the principal. And thus, what I did was I was basically calculating the present value, or rather I would say I was making use of the present value formula. So therefore, when I am using amortization of loan on the assumption क्वेश्चन में अगर at the beginning लिखा होगा तो प्लीज नोट, आप ऑर्डिनरी एन्युटी यूज नहीं कर पाओगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी एन्युटी ड्यू। पर अभी हम क्योंकि ऑर्डिनरी एन्युटी की एप्लीकेशन कर रहे हैं where the assumption is payment is made at the end, तो therefore हम formulas भी ordinary annuity के ही यूज करेंगे। Now, what is bond valuation? You know, bond is a debt instrument. That is, when you need, it is a source of funds. So a company needs certain fund, it will issue bond. So therefore, it will issue bond at a certain price. Now, bond valuation is a technique for determining the theoretical fair value of a particular bond. Now, what do I mean by a theoretical fair value of a particular bond? It means when I am actually buying a bond, why am I actually buying a bond? I am buying a bond because I think what will I get in return? I will get two things in return. One will be the future interest payment. That is, I will be getting a regular interest or out of that bond, right? So in return, I am getting a regular interest payment. And the second thing that I'll get is on the maturity of the bond. So let's say the maturity of the bond is 10 years or so. Whenever it is maturing, I am going to get that value, that money, which is also known as face value or redemption value or par value. Please note these are technical terms which you should remember. So therefore, just like मैंने बोला EMI के दो पार्ट्स होते हैं। EMI के दो पार्ट्स क्या होते हैं? एक होता है जो मैं इंटरेस्ट पे करती हूँ आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, और दूसरा पार्ट होता है जो प्रिंसिपल के टुवर्ड्स में पेमेंट करती हूँ। सिमिलरली बॉन्ड की जो प्राइस है, मैं आज जो पैसा दे के बॉन्ड खरीद रही हूँ, वो मैं क्यों खरीद रही हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और रादर ऐसा होता है कि मुझे एक रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी इसके बदले में, एंड फाइनली जब मेच्योरिटी हो जाएगी तो मुझे रिडेम्पशन वैल्यू भी मिलेगी। तो ये दो चीजें मुझे मिलेगी। सो थियोरेटिकल फेयर प्राइस का क्या मतलब हुआ और फेयर वैल्यू का क्या मतलब हुआ? It means it includes, just like EMI, it also includes two things. What are the two things? Let's see. One is the present value of a bond's future interest payment, also known as its cash value, cash flow. I repeat, हमने पिछला क्वेश्चन किया, EMI किया, वहां भी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया। क्यों लगाया? भाई मैं आज की डेट में लोन खरीद रही हूँ, लोन ले रही हूँ, तो प्रेजेंट वैल्यू, इसलिए आज की डेट में। नाउ मैं क्या करूंगी, सिमिलरली मैं बॉन्ड आज खरीद रही हूँ, तो मैं देखूंगी कल को मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, जो जो इंटरेस्ट मिलता जाएगा मुझे हर महीने या हर साल, व्हाटएवर जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट है, जो इंटरेस्ट मिलेगा उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। I will check what is the value of that today. Therefore, I am again going to use the formula of present value of the bond's future interest payment. So the first part of it is calculating the present value of a bond's future interest payment, also known as its cash value. That's one part of it. What is the second part of it? The second part of it is bond's value upon maturity, also known as its face value or par value. Now I have a question for all of you. ये जो मेच्योरिटी पे वैल्यू होगी, अगेन मुझे ये बताओ, इसकी फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू? एनीबडी? रिडेम्पशन वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू निकालूंगी या प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी? बताओ जी, कोई बताएगा? ट्राई करो। प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट, क्योंकि मैंने जब बॉन्ड खरीदा, बोला कि भाई आज मैं 1 लाख का बॉन्ड खरीद रही हूँ, उस पे लेट्स से 5% का इंटरेस्ट है, और 10 साल के बाद आपको 1,11,000 मिलेगा। तो ये जो 1,11,000 है, ये मुझे 10 साल के बाद मिलेगा। तो 1,11,000 तो मेरी फ्यूचर वैल्यू है, मुझे चाहिए आज के डेट में वैल्यू, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, राइट? और उससे मुझे पता चलेगा, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरा थियोरेटिकल
प्राइस आएगा और फेयर वैल्यू आएगा. दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन इज. Theoretically, any question, please ask. Then आगे चलेंगे. If there is any question, please ask. चलो आगे. If I can go ahead, please say yes. Yes, ma'am. Okay, fine. So what are we saying? Therefore, the purchase price of the bond is aggregate of. टोटल है दो चीजों का. जस्ट लाइक EMI, यहाँ भी दो चीजों का टोटल करना है मुझे. Aggregate of one, present value of the expected future return or income from the bond. पहले मुझे present value निकालनी है income from the bond की या future return की या interest की basically, and the present value of its redemption price. So पहली बात, मुझे bond valuation के लिए present value ही निकालनी है दोनों की. इंटरेस्ट की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, रिडेम्पशन वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. तो मुझे पता है मुझे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना है. और इस केस में अगेन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑन द अजम्पशन दैट एट द एंड ऑफ द पीरियड पेमेंट हुई है. हाँ, क्वेश्चन में एट द बिगनिंग लिखा हो तो अलग बात है, उन केसेस पे हम बाद में आएंगे. ठीक है, अभी हम सिर्फ ऑर्डिनरी एन्युटी कर रहे हैं. तो सी व्हाट इज द फॉर्मूला. सो ये है, ये वाला पार्ट. फर्स्ट पार्ट है मेरा इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू. फर्स्ट पार्ट है मेरा इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू. नाउ वी विल अंडरस्टैंड ईच टर्म कि वी क्या होता है, आर क्या होता है, आर वी क्या होता है, ये सब हमें समझना है. दूसरा पार्ट है मेरा रिडेम्पशन वैल्यू. ठीक है, ये देखिए. सो अब देखिए वी, व्हाट इज वी? वी इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड और इट्स प्राइस. तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड या पूछा है और फाइंड द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, सो यू हैव टू कैलकुलेट वी, यू नो दिस. सेकंड पार्ट ऑफ इट इज आरवी, which has different names. Please note, it is also known as redemption value, it is also known as face value. Face value यूज किया है टर्म, redemption value यूज किया है, तो उसका मतलब है redemption value की बात हो रही है. ये है RV. This is known as RV. Now R is equal to the effective rate or yield on the bond. Now yield on the bond क्या होता है और effective rate क्या होता है? Effective rate और yield on the bond है कि मुझे पता है कि मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा. लेट्स से 1 लाख का मैंने बॉन्ड खरीदा, उस पर 5% का इंटरेस्ट है. सो व्हाटएवर आई कैलकुलेट दैट कम्स आउट टू बी माय व्हाट यू कॉल इफेक्टिव रेट. 5% इज द इफेक्टिव रेट. सो देयरफॉर R actually is nothing but 1 lakh into 5% is the interest. ये तो मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन इसकी वैल्यू अलग अलग होगी ना. प्रेजेंट डेट पे लाने के लिए मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर से, और ये है मेरा ANR %. So therefore, N is the maturity, sorry, not the maturity value, I would say the, years, I would say, rather than saying maturity value. Let's just change this term and make it maturity period. This should be maturity period of the bond. ठीक है, तो मैंने बोला 10 साल के बाद आप मैच्योर होगा बॉन्ड, तो उस केस में N हो गया. ठीक है, is it clear? So therefore the formula, this formula is clear. This is first part of it is the present value of the interest income that you're getting, and second part of it is the present value of the redemption value. Is it clear? I'll move on to the second and last theory part and then move to the questions. Any doubt, please ask. And if I can go ahead, just say ma'am, go ahead. Go ahead. Okay, fine. Go ahead. Fine. So let's come to the second part of it, which we'll use a little later. There can be two types of bonds. One can be the coupon rate bond, जैसे कि मैंने बोला, जिसमें कि specific rate mentioned होता है कि भाई आपको 5% का interest मिलेगा. That is a coupon rate. So that is the coupon rate. Carry a specific rate of interest that is paid on the face value of the bond. I gave you the example of that also. Another is known as zero coupon bond. Now, when I'm saying zero coupon bond, it automatically means there is no interest rate on it. Now, if there is no interest rate on it, it also means that you are issuing it at a lower price and is redeemable at a higher price on maturity. मतलब आप ये मान सकते हो कि maturity पे assumption है कि जो आपको टोटल पैसा मिलेगा, 1 लाख का बॉन्ड आज खरीदा, 10 साल के बाद आपको सीधा 1,20,000 मिलेगा. So that is the value. Therefore, उस केस में can anybody tell me क्या ये फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा? अगर मेरा जीरो कूपन बॉन्ड है, will I use the same formula? Anybody? No मैम, वो फर्स्ट वाला पार्ट हट जाएगा बिकॉज़ अब इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे. Exactly, that's what will happen अगर आपके क्वेश्चन में जीरो कूपन बॉन्ड बोला होगा. So that is pretty much the theory of it. I'll put a few questions to all of you and then move on to the question. Okay, so let's start with someone. Harrison, are you there? Harrison?
Okay, Yash, are you there? Yash. Hello, Vansh. Vansh, are you there? Yes, ma'am. Vansh, just tell me what you understood in your lines. That's all. Ma'am, no. थोड़ा सा तो बताओ, कुछ तो समझ आया होगा, बोलो. I understand you're from science background. Just tell me what you understood. कुछ भी नहीं आया? मैम आया बट उतना एक्सप्लेन नहीं. नहीं कर पा रहा. हाँ. कुछ तो बॉन्ड के बारे में कुछ तो बताओ. बॉन्ड के बारे में क्या समझ आया? बॉन्ड क्या होता है? मैं तुम्हें बोलूं बॉन्ड खरीद लो, तुम बॉन्ड क्यों खरीदोगे ये बताओ. मैम मैंने सुना नहीं उतना. सो रहे थे पहले, तुम्हारा नेटवर्क नहीं आता, ऊपर से तुम साइंस स्टूडेंट हो, ऐसे कैसे चलेगा वंश? तुम्हें रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी 1 घंटे की 5 घंटे में, तभी समझ आएगा. चलिए, सारा आर यू देयर? सारा. हाँ, सारा, टेल मी व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? जस्ट टेल मी इन योर लाइंस. Ma'am, firstly, you started telling us about the installment, that there are two parts of it. There is an interest outstanding and there is a principal for which we calculated the present value. Then you told us that why we buy a bond, because firstly, there is a regular payment in the form of interest, and then there's the face value, which is also called the par value or the redemption value, which we get after maturity. Right. Then you told us about the fair value, which is because it, like basically it has two parts: the present value of a bond's future interest payment, which is called the cash value, and the second, which is the bond's value upon maturity, called the face value or par value. And that's it. Thank you so much. Very well explained. Yeah. So let's see a question, all of you. A simple one. A bond has a face value of 1,000 and matures in 15 years. The nominal interest is 7%. Now please note, यहाँ पे दो terms use किए हैं. एक तो किया nominal interest is 7% और दूसरी term use की है what is the price of the bond that will yield an effective rate of interest, or rather yield an effective rate of 8%. ठीक है? पहली बात, nominal rate और interest में क्या फर्क है? ठीक है? Effective interest में क्या फर्क है? Anybody? आपको याद है हमने एक रिलेशनशिप किया था नॉमिनल और इफेक्टिव का? अब इन्फ्लेशन का होता है शायद कुछ. बोलो बोलो, हाँ एक बार बोलो फिर से. सही बोल रहे हो? इन्फ्लेशन को. हाँ ठीक है, यू आर राइट. मतलब बेसिकली इट्स लाइक अ डिस्काउंटिंग फैक्टर. इट इज लाइक अ डिस्काउंटिंग फैक्टर, व्हिच मींस मेरा पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि देखो मैंने आपको बोला दो पार्ट्स है, मुझे पता है फॉर्मूला मुझे ये लगाना है. एवरीवन नोज दैट फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बॉन्ड V इज इक्वल टू RA&I प्लस RV अपॉन 1 प्लस I रेज़ टू द पावर n. ठीक है, सबसे पहले मुझे निकालना है R. अब मुझे पता है नहीं R कितना है. R है क्या? R है मेरी जो इंटरेस्ट पेमेंट है, राइट? नाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेमेंट, यहाँ कंफ्यूजन कहाँ आएगा? आप सोचोगे भाई 1,000 रुपीज पे निकालना है, ये तो आपको पता है फेस वैल्यू 1,000 है, 1,000 पे मुझे इंटरेस्ट पे होगा. अब आपको कंफ्यूजन यहाँ आएगा कि भाई नॉमिनल इंटरेस्ट से निकालू 1,000 इंटू 7% या फिर ये यील्ड एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से निकालू. एनीबडी? क्या किससे निकालू? 7% से मेरा इंटरेस्ट निकलेगा या 8% से? कोई बता सकता है? Whatever comes to your mind, just say it. चाहे गलत हो, बोलिए. Effective rate of 7. Okay, so why are you saying 7 and not 8? Please tell me. Ma'am, because 7 is the nominal interest rate, मतलब that is the coupon rate, right? So interest उसी के हिसाब से होता है. Right, exactly. So therefore, one very important thing is मुझे सबसे पहले निकालना है R. तो R निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे आ गई सेकंड यहाँ लाइन पे. 1,000 पे 7% इंटरेस्ट निकाला. इट मीन्स मेरा इंटरेस्ट बनता है 70 रुपए का. मुझे 70 रुपए इंटरेस्ट मिलना चाहिए. ठीक है, जो भी महीने में या जैसे भी आपका टर्म्स है उस हिसाब से मुझे 70 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे हर महीने या हर साल, whatever is the term. Now I know that is R, but this is not the present value. It does not take care of whatever inflation, time value of money, etc., which Dhruv has pointed out. So therefore, to take into account the time value of money,
This is the 8%, and this is the annuity factor that I have to calculate for how many years? I have 15 years. So therefore मेरे पास ये जो फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट था RANR percent. So इसमें R मैंने लिया 70, A मैंने लिया as it is obviously it's an annuity factor, N is 15 years, simple है, and percentage effective rate दिया मुझे 8%. ये आ गया मेरे पास, plus 1000 upon 1 plus 8% raised to the power 15. All of you, if you are there with your tables, please give me the first ANI A15 8% की वैल्यू चाहिए मुझे, बताओ फिर ये आगे चलेंगे। मैंने कल खोला टेबल के साथ। 8.55947869। ध्रुव कहाँ से आया टेबल आज? मैम बुक में था, चलो मुबारक, पेज नंबर 8.32 मैम बुक में खोल रखा है, आपका नहीं देखा। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं नहीं अच्छी बात है, सबको बता दो ताकि सब थोड़ा तैयार रहे। वेरी गुड, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ही इज राइट, ध्रुव इज राइट, 8.5। एंड प्लीज नोट ऑल ऑफ यू, कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम इसे राउंड ऑफ कर दे। अरे भाई राउंड ऑफ में तुम्हारी तुम्हें क्यों राउंड ऑफ करना है? तुम्हें पूरी पूरी वैल्यू दी है, उसको पूरी को लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो और दे दो, ठीक है। कोई राउंड ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी वैल्यू बुक से उठानी है और मल्टीप्लाई करनी है, टेबल से उठानी है। तो 1000, और अब इसके बाद मुझे सेकंड वैल्यू चाहिए 1 + 0.08 रेज टू द पावर 15 की। एनीबडी? ये तो सिंपल है, 1 + 0.08 15 की कोई दे सकता है वैल्यू? सामने है लेकिन कैन यू प्लीज चेक फ्रॉम द टेबल एंड गिव मी। हैरिसन अभी भी नहीं है क्या यहाँ पे? दिखा तो रहे हैं, शो तो कर रहा है ग्रुप, क्यों? इसको वो देती हूँ, कौन सा मतलब पिन वैल्यू बताओ जी, तब तक मैं हैरिसन को इन्फॉर्मेशन भेजूँ। आप लोगों को पता है ये? हाँ बोलो बोलो बोलो। वैल्यू आपने अभी इसमें 0.08 का जो है वो तो बुक में इट इज 855,947 समथिंग, वो फोटो क्लियर नहीं है मैम। ठीक है, नाउ आप जो अभी कह रहे हो 1 + 0.8 का, हाउ व्हाट विल वी डू इन दिस थिंग? एनीबडी? बुक में 3-4 टेबल्स हैं बाय द वे। एन्युटी ड्यू का अलग मिलेगा आपको, ऑर्डिनरी एन्युटी का अलग मिलेगा। कोई मुझे बताएगा इसको निकालने के लिए 1 + 0.08 रेज़ टू द पावर 15 में कौन सा टेबल यूज करूंगी? एनीबडी कैन यू टेल मी? 1 + 0.08, हाँ बताइए। देखिए मैम इसके अंदर टेबल प्रेजेंट वैल्यू एट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला होगा, A16 पे जो है, सिंपल, हाँ लेकिन वैल्यू गलत लिखी हुई है मैम आपने। हाँ वो चेक कर लेते हैं, कितना है, कितना है बताओ। मैम 3152 है, 53 नहीं है, 315241। वो मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। 315, लेट मी चेक। मैं भी अपने टेबल में चेक कर लेती हूँ। 3152 है, दैट्स राइट, यू आर राइट। दिस इज अ मिस टाइपिंग एरर आई वुड से, यू आर राइट, दिस इज राइट, ठीक है। सो नाउ एवरीवन प्लीज नोट, ये टेबल अलग है पहली बात, ये एन्युटी वाला है, प्रेजेंट वैल्यू वाला है, ऑर्डिनरी एन्युटी का है। ये टेबल अलग है, ये नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टेबल है। तो ये पहला टेबल होगा, सेकंड आपका ऑर्डिनरी टेबल होगा, थर्ड जब हम आगे ड्यू वगैरह करेंगे वो सब बाद में देखेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। एवरीवन हैज गॉट इट? ठीक है, आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन टू डू राइट नाउ। आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर, आंसर आपको मिलेगा 10 मिनट बाद जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये लीजिए, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ, एक सेकेंड थोड़ा सा एरर है, राइट इट, of 1,000 रुपी बॉन्ड। रिपीटेशन है, ये लो। चलो जी स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को, फिर आंसर बताऊंगी। रिडीमेबल एट 10 years, या दिस इज इट। थोड़ा ध्यान रखना भाई इसमें, करो इस क्वेश्चन को। आंसर you'll get after 10 minutes. You have 10 minutes to solve it on your registers, please, right now. What is the answer? Yes.
I'll be back in 2 minutes. Please solve it and then I'll ask you. Just give me 2 minutes. Yes, have you been able to solve it, class? What is the answer? step चलते हैं. बताओ भाई, what is R equal to? पहले तो ये बता दो. हम 40 है यार तो. हाँ बिल्कुल ठीक है. तो दैट मीन्स आपको ये बात समझ आ गई पहली बात कि आपको दो टाइप के इंटरेस्ट दिए होंगे. आपको डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर उल्टा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. तो ये जो आपका एनुअल इंटरेस्ट है 4% पे पे हो रहा है. इफ द यील्ड रेट इज टू बी 5%, तो आपको ये देखना है कि ये यील्ड जो है ये टेकिंग इनटू कंसिडरेशन आपका टाइम वैल्यू है. ठीक है, या अगर इफेक्टिव भी दे सकते हैं इसको और इसको नॉमिनल दे सकते हैं. पहली बात 984 इज करेक्ट. 984.17 टू बी वेरी प्रिसाइज. हाँ बट क्या हमारी आदत है ना राउंड ऑफ करने की. मैं आगे बोल रहा था. कोई बात नहीं, no problem. Fine, let's correct. Any doubts? Can I move ahead or shall I give you more time? Please let me know. I'm waiting. आदित्य आगे चले. Yes, ma'am. ओके अमनदीप आगे चले. अनुकृति, can I go ahead? Yes, ma'am. Okay, fine. Let's do one more question, and please note it will be a little different than what we have already done. Let's see. So bond Z has a face value of 1 lakh, which again means it's the redemption value with 30 years. That means N is 30. The appropriate discount rate is 10%. So what is the value of the zero coupon bond? This is the difference between the questions we have done and now. Somebody had pointed out zero coupon bond में formula बदल जाएगा. In fact बदल क्या जाएगा, छोटा हो जाएगा. Find out what should be the value of this bond after 5 years. अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना सिंपल नहीं है. क्योंकि कहता है वैसे तो कह रहा है 30 इयर्स है, वैसे तो कहता है 30 इयर्स है. तो पहली बात तो वो कह रहा है 30 इयर्स है. अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले पहला स्टेप मेरा होगा कि अगर 30 इयर्स की उसकी एन है तो पहले मैं निकालूंगी कि उसकी प्राइस क्या है. ठीक है, बॉन्ड की वैल्यू क्या है. तो पहले तो आप लोग निकालिए विद 1000 एंड एन बीइंग 30 एंड आर बीइंग 10%, कैलकुलेट द वैल्यू. सबसे पहले v निकालिए एवरीवन, देन आई टेल यू द सेकंड स्टेप. क्योंकि इसमें वो आगे बोलता है फाइंड आउट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड आफ्टर 5 इयर्स. इसके लिए आगे चलेंगे. फर्स्ट प्लीज कैलकुलेट v. आई एम नॉट शोइंग यू द सॉल्यूशन, इट्स नीचे है, बट करिए. v निकालिए. हाउ मच इज v इक्वल टू? V is equal to 57.31. That's right, correct. Here 57.31 is the right answer. But now question क्या है? आगे कहता है find out what should be the value of this bond after 5 years. Anyone? कैसे निकालूं? बहुत सिंपल है. 57.31 की 5 साल बाद वैल्यू क्या होगी अगर डिस्काउंट रेट 10% है? Anyone? बता सकते हैं कोई? कैलकुलेट करके नहीं बताना, पहले मुझे बताना फॉर्मूला क्या लगाऊंगी, कैसे कैलकुलेट करूंगी. ये लो, आफ्टर 5 इयर्स
57.31 into 1.10 raised to the power 5. क्या किया मैंने? ये कौन सा फॉर्मूला है by the way? Which formula is this? कई लोग बोलेंगे कहाँ से आ गया? हाँ बोलो बोलो बोलो. अमाउंट का ना? किसका? मतलब कब? मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट में ना? हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में, मतलब ना कोई ऑर्डिनरी एन्युटी, किसी टाइप की एन्युटी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा बस नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला है, वही लगाया है मैंने. दैट इज इट. सो दैट इज द आंसर. एनी क्वेश्चन? Okay, so you can do more practice questions on bond value. If you want, I'll send them also to you on the group. So I'm moving to the second part of it because see, I am right now doing application of ordinary annuity with you. अब प्लीज अभी बहुत सिंपल है, आगे जब हम एन्युटी ड्यू और चीजें लाएंगे ना तब कंफ्यूजन शुरू होगा कि भाई लगाएं कौन सी, ऑर्डिनरी एन्युटी लगाएं या एन्युटी ड्यू लगाएं. अभी तक तो मैं सारे आपको ऑर्डिनरी एन्युटी के एप्लीकेशन में अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन करा दिया और आपको करा दिया बॉन्ड वैल्यूएशन. अब तीसरा करा रही हूँ. तीसरा मैं ऑर्डिनरी एन्युटी में ही स्टार्ट कर रही हूँ, सिंकिंग फंड, और कल हम एन्युटी ड्यू करेंगे तो उसमें देखेंगे sinking fund या क्या applications हो सकती हैं. So let's talk about sinking fund. Although a part of sinking fund I have already done with you in accounts also. I think I have taught you accounts if I remember correctly. So sinking fund, what is sinking fund? If you remember, we usually used to create a sinking fund for the redemption of debenture purposes. And the word sinking fund basically means you are periodically setting aside certain money for the gradual repayment of a debt or replacement of a wasting asset. तो कल को 10 साल बाद लेट्स से मेरा ये एसेट का वैल्यू 0 हो जाएगा या बहुत ही कम हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन मुझे इस एसेट को रिप्लेस करना पड़ेगा. उसे रिप्लेस करने के लिए मैं हर महीने या हर साल कुछ अमाउंट डालती जा रही हूँ अपनी गुल्लक में, इन शॉर्ट. एंड देन फाइनली ऑन दैट डे व्हेन आई वांट टू रिप्लेस इट, ऐसा नहीं होगा कि मुझे बर्डन पड़ेगा 10 लाख का सडनली और 10 लाख मुझे निकालना पड़ेगा अपनी पॉकेट से. मैंने हर महीने कुछ कुछ सेव किया था एंड इकट्ठे उसको मैं रिप्लेस कर दूंगी. दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंकिंग फंड इज. सो देयरफॉर नाउ द पॉइंट हियर इज, if periodic amount to be set aside is at the end of the period, please remember again ऑर्डिनरी एन्युटी चल रहा है, ऑर्डिनरी एन्युटी की एप्लीकेशन हो रही है, बट क्वेश्चन में अगर सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है और लिखा होगा एट द एंड ऑफ द पीरियड, और अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू assumption is always it's ordinary annuity. अगर बिगनिंग नहीं लिखा है, एंड नहीं लिखा है, assumption is it is end and it is an ordinary annuity. Now having said that, अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है एंड ऑफ द पीरियड, you are assuming it's ordinary annuity, आप ordinary annuity का फॉर्मूला लगाओगे. बट लेट्स से क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है और क्वेश्चन में लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तब आप क्या करोगे? तब आप वो करोगे जो अभी तक हमने नहीं किया, वो हम कल क्लास में स्टार्ट करेंगे, नया कॉन्सेप्ट, दैट इज एन्युटी ड्यू. ये मैं आपको अभी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता रही हूँ साफ साफ, ताकि आपको क्लियर रहे कि किस समय कौन सा फॉर्मूला लगाना है. ऑर्डिनरी एन्युटी तभी लगेगा जब एट द एंड ऑफ द पीरियड है, या फिर लिखा नहीं हुआ है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड है, या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है, तो अजम्पशन है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड है और आप ऑर्डिनरी एन्युटी लगाओगे. अब सिंकिंग फंड हुआ क्या? इन शॉर्ट मैंने ये बोला, मैं ये कर रही हूँ, अगर आपको याद हो अभी तक मैं प्रेजेंट वैल्यू बता रही थी आपको, अभी तक मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू बता रही थी. सिंकिंग फंड के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे चाहिए साल के एंड में 10 लाख रुपए अपनी मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए. सो दिस इज, यू कैन से एस, दिस एस इज इक्वल टू 10 लाख. ठीक है, और अब मैं हर महीने कितना पैसा जो है वो इसमें डालूं जिससे कि मेरे पास एंड में साल नहीं 10 साल के एंड में 10 लाख रुपए आ जाए. तो व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग इज आर एस इज इक्वल टू आर एस एन आर परसेंट. अब आप बोलोगे ये ए एन आर से एस एन आर कैसे हो गया? एनीबडी, ये ए एन आर से एस एन आर कैसे हो गया? मैं आज 1000 रुपए डालती हूँ, ठीक है, उसके बाद लेट्स से अगले महीने 1000 रुपए डालती हूँ, उसके अगले महीने फिर 1000 रुपए डालती हूँ, और ऐसे ऐसे कर करके मैं 10 साल तक डालती रहती हूँ. तो ये जो 10 लाख है ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू है? एनीवन? फ्यूचर. दैट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस हियर. अभी तक हमने जो दो चीजें की अमोर्टाइजेशन में और आपका बॉन्ड वैल्यूएशन में, वो प्रेजेंट वैल्यू किया था.
सिंकिंग फंड में हम एप्लीकेशन कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू की, इसीलिए मेरा वो फॉर्मूला अगर आपको याद हो ऑर्डिनरी एन्युटी का तो वो यहाँ लगा है S इज इक्वल टू आर एस एन आर परसेंट, विच ऑल्सो मीन्स दैट आर मतलब कि मैं हर महीने मुझे बोलेगा हर महीने मैं कितना पैसा निकालूं कि भाई 10 साल के बाद मेरे पास इतना पैसा हो जाए. सो आर इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय एस एन आर परसेंट. दैट इज द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज. Any confusion? Or we can go to the application site or the question. If you have a question, please ask. Can I go ahead? हम एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दो एक बार. हाँ बिल्कुल. सिंकिंग फंड क्या है? अगर आपको याद हो अपना अकाउंट सेकेंड सेमेस्टर मैं बोलती हूँ बाई द एंड ऑफ 5 years मेरा डिबेंचर रिडीम करना है मुझे 10 लाख रुपए के लिए. 10 लाख रुपए देने हैं मुझे रिडेम्पशन में. अब भाई 5 साल के बाद अचानक से मेरे पे 10 लाख का बर्डन पड़ेगा और मुझे 10 लाख निकालने पड़ेंगे. कहाँ से निकालूंगी, कहाँ से अरेंज करूंगी इतनी मोटी रकम? सो आई डिसाइड दैट मैं हर साल या लेट्स से हर महीने डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर इज द टर्म मैं कुछ छोटा अमाउंट निकाल के डाल देती हूँ. एक फंड क्रिएट कर देती हूँ सिंकिंग फंड के नाम का और उसमें डाल देती हूँ पैसा. उस पर इंटरेस्ट भी आता रहेगा और वो इकट्ठे होके मेरे पास बर्डन भी नहीं पड़ेगा. हर साल थोड़ा थोड़ा बर्डन पड़ेगा. 5 साल के बाद मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा और वो मैं उठा के रिडीम कर दूंगी डिबेंचर्स. That is the concept of sinking fund, a fund formed by periodically setting aside money for the gradual repayment of a debt or replacement of a wasting asset. If periodic amount to be set aside is at the end of the period, the formula for ordinary annuity applies. We have वैसे भी अभी तक हमने ऑर्डिनरी एन्युटी किया है. बाय द वे आपको पता ही ऑर्डिनरी एन्युटी है वो क्या है कि एंड में अगर पीरियड के एंड में आप पेमेंट करते हो तो ऑर्डिनरी एन्युटी लगाते हैं. जस्ट टू पॉइंट आउट द और पुट द बेस ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुमारो. अगर आप पीरियड के बिगिनिंग में करते हो पेमेंट तो उसे कहते हैं एन्युटी ड्यू. क्वेश्चन में हो सकता है आपको एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन आ जाए, बोले कि एट द बिगिनिंग आप पेमेंट पैसे अलग रख रहे हो, तब आपको एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा. लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं बोलता कि बिगिनिंग में डाल रहे हो या एंड में डाल रहे हो तो अजम्पशन हमेशा रहती है ऑर्डिनरी एन्युटी की कि आप एट द एंड कर रहे हो. अगर आपको याद हो तो जब हम सिंकिंग फंड किया था डिवेंचर्स कॉर्पोरेट अकाउंट्स में तो आप एट द एंड ही करते थे बाय द वे. सो देयरफॉर द अजम्पशन इज एट द एंड. दस फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू. कैसे फ्यूचर वैल्यू? मुझे चाहिए 5 साल के बाद 10 लाख रुपए. आज मैं सिर्फ 1000 रुपए डाल रही हूँ. आज जो 1000 रुपए है क्या उसकी वैल्यू 5 साल के बाद भी 1000 रुपए रहेगी? नहीं. उसके लिए मैं ये डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा रही हूँ, उसके लिए मैं ये फैक्टर एन्युटी वाला लगा रही हूँ और मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है S इज इक्वल टू R इंटू SNR परसेंट, विच मीन्स मुझे निकालना है ये R. दिस R इज इक्वल टू S अपॉन ये S क्या है कि मुझे पैसा कितना चाहिए 5 साल बाद अपॉन जो भी मेरा एन्युटी फैक्टर है फ्यूचर वैल्यू के लिए. फ्यूचर वैल्यू के लिए. सो द डिफरेंस अमॉर्टाइजेशन में प्रेजेंट वैल्यू लगा रहे थे, बॉन्ड वैल्यूएशन में भी प्रेजेंट वैल्यू लगा रहे थे, सिंकिंग फंड में फ्यूचर वैल्यू लगा रहे हैं क्योंकि मुझे फ्यूचर में इतना पैसा चाहिए. यस ओके क्लियर? ठीक है. क्वेश्चन, लेट्स सी द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू एंड फॉर्मूला आपके पास है सामने, बहुत सिंपल है. A sinking fund is created for redemption of debentures of 1 lakh. हाँ 1 lakh. That means 1 lakh. This S is equal to 1 lakh. मुझे 1 लाख चाहिए at the end of 25 years. Therefore, N is equal to 25. How much money should be provided out of profits of each year for the sinking fund if the investment can earn interest at 4% per annum? R is the 4%. Now, everyone, यहाँ कहीं लिखा है कि मैंने ऑर्डिनरी एन्युटी लगानी है? बोलिए. वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं लिखा है कि मैंने नहीं लिखा? यहाँ कुछ नहीं लिखा. एट द एंड लगा रही हूँ पैसा या फिर एट द बिगिनिंग लगा रही हूँ. तो क्या assumption रहेगी? At the end. So therefore, I have to put the formula of sinking fund ordinary annuity. So future value. So therefore, this is the formula. S is equal to R SNR percent. Therefore, S is 10 lakh divided by SNR percent. That is 25 4%. निकालो टेबल से वैल्यू निकालो S 25 4% की. यहाँ भी पता चल जाएगा कौन सा टेबल लगेगा. कहीं तुम प्रेजेंट वैल्यू का निकाल के बैठ जाओ क्योंकि पिछली 2 केसेस में तुमने प्रेजेंट वैल्यू का टेबल लगाया था. तो इसकी वैल्यू निकाल के बताओ तभी पता चलेगा तुम्हें समझ आया कि नहीं. Tell me the value of SNR. Check. 41.6459083.
64 है कि 46 है? आई एम रॉन्ग और यू आर रॉन्ग? चलो चेक. वेट, 41.64. you are right. Correct. So that means you have seen correctly. बहुत अच्छी बात है. That's right. So this is the answer. Any question? Okay. Let's do one more question and then we'll wind up. A machine costs, ये थोड़ा सा और ट्रिकी है. पहले वाला बहुत बेसिक था, सिंपल था. इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा जो अब मैं दे रही हूँ. A machine costs a company 52,000. 52,000 की मशीनरी है. And its effective life is estimated to be 12 years. 12 साल तक उसकी effective life है. A sinking fund is created for replacing the machine. Sinking fund मैं create करती हूँ machine को replace करने की. By a new model at the end of its lifetime. जब भी उसका end है, end कितना है? 12 साल का. When its scrap realizes a sum of 5,000 only. The price of new model is estimated to be 25% higher than the price of the present one. पहली चीज. दूसरी चीज, find what amount should be set aside at the end of each year out of the profit for the sinking fund if it accumulates at 10% effective. पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, क्योंकि मुझे पता है सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है. दूसरी बात ये है कि मेरे को एस तो पता होना चाहिए कि मुझे एट द एंड ऑफ 12 साल पैसा कितना चाहिए. कैन एनीबडी टेल मी एट द एंड ऑफ 12 years हाउ मच मनी डू आई रिक्वायर? सिंकिंग फंड तो उसी के हिसाब से बनाऊंगी ना. 60,000. नो, 60,000 कैसे निकाला? 5,000. 65 60 मैम. भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है. कैसे मैम, निकाला ये बताओ. 60,000. मैम 60,000 भी होगा क्योंकि चल. 5,000 रुपए स्क्रैप रिलाइज हो रहे हैं. माइनस भी करेंगे. माइनस भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे. मेरे को एक्सप्लेन करो बेटा, क्योंकि सबको नहीं समझ आ रहा है जो तुम बोल रहे हो. यू एक्सप्लेन करो जो भी बोल रहे हो. ध्रुव तुम बोल रहे हो? यस मैम. हाँ ध्रुव एक्सप्लेन. 60,000 बताओ कैसे निकाला है. मैम पहले 25% ऑफ द ओल्ड मशीन वो आएगा. Very good. 65 आ जाएगा. उसके बाद मैम उतना नई मशीन के लिए चाहिए, प्लस हमको इसको हाँ. बेचने से पैसा मिलेगा 5,000. बिल्कुल तो ये भी सब बिल्कुल. टैग करेंगे तो इन नेट 60,000 चाहिए. बिल्कुल करेक्ट. आई शो यू. सो दिस इज व्हाट ही हैज सेड. ध्रुव हैज सेड कि अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है. 52,000 की तो ये मशीन थी. अब वो कहता है इससे 25% ज्यादा की मशीन आएगी 12 साल बाद. तो 25% लगाया 52,000 पे, और अब मुझे उससे 5,000 पैसा वापस भी मिलेगा बेचने पे. सो एडिंग ऑल दिस एंड subtracting I get 60,000. मतलब मुझे चाहिए 60,000 पहली बात. So S is equal to 60,000, which also means obviously the formula goes 60,000 divided by S 12 10%. Now tell me the value of table में देख के 12 S 12 10% की वैल्यू बताओ. I want this value. 22. बोलो 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 फिर से बोलो. 22.42. I don't think so. मैं एक बार चेक कर लेती हूँ फिर भी. हाँ एक मिनट रुक जाए. थोड़ा सा डिफरेंट है. I think you're almost right but not really correct. बताओ. This is 12 and this is 10%. 12 and 10. 12 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है. हाँ जी बताओ. कौन बता रहा है? बोलो कितना आ रहा? कोई भी नहीं बता रहा. चेक कर लो, सब चेक कर लो, मैं भी चेक कर लूँ. 12 and 10. बताओ जी, आ रहा है? इतना नहीं आ रहा. क्या हुआ? बोलो. नहीं आ रहा? गलत है तो बताओ. क्या हुआ? निकला नहीं? किसी का नहीं निकल रहा? मैं इसीलिए कंफर्म कर रही हूँ बुक में से that this is right or not. 12 and 10. This is correct, beta. What I have written is correct. 21.38. Everyone, please see. It means you do not know how to look at the table. If you have a doubt, please ask me. टेबल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना सिंपल है, इसमें नंबर कटाने का कोई मतलब नहीं है. बताओ 21.38 आ रहा है? नहीं आ रहा? सबका आना चाहिए. उसी के बाद क्लास वाइंड अप होगी आज की. आशु
Are you there, Ashu? Yes, ma'am. बताओ, ये नहीं आ रहा तुम्हारा 21 पॉइंट ये वैल्यू 38? मैम आ गई। टेबल बताओ, टेबल पे लिखा गया, टेबल का नाम बोलो ऊपर। मैम अमाउंट ऑफ एन्युटी। Okay, there might be different things in different books, by the way. It should be either amount or it should be future value, interest factor, annuity. I repeat, amount हो सकता है या फिर future value हो सकता है, interest factor, annuity. Please class, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि गलत टेबल देख लोगे, क्योंकि टेबल बहुत सारे हैं। कहीं तुम नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टेबल का अमाउंट देखोगे, कहीं तुम ऑर्डिनरी एन्युटी का देखोगे, कहीं एन्युटी ड्यू का देखोगे। गलत टेबल देखोगे तो गलत वैल्यू आएगी। इसमें है, हैव यू गॉट द राइट वैल्यू नाउ? तुम गलत बोल रहे थे ना? Yes, ma'am. ठीक है, फाइन। या इज देयर अ डाउट एनीवन? मैम 10% वाली टेबल दिख नहीं रही। ये वाली बेटा S12.10 ना? यस मैम। ये वाली बोल रहे हो? यस मैम, सिर्फ 8 तक दिख रहा है, 10 का दिख नहीं रही। अच्छा, एक सेकंड। नहीं दिख रही? नो मैम, बुक में सिर्फ 8%। लेट मी टेल यू, हो सकता है वो, क्योंकि बिकॉज आई आल्सो हैव अ डिफरेंट बुक ऑनेस्टली राइट नाउ। लेट मी टेल यू, जेके टुकराल नहीं है मेरे पास। there is a possibility, there is a, by the way, for papers, either you will have the tables, log tables, which they will be providing you, or like I said, अगर वो log table में book में नहीं होगी value, तो question में जैसा मैंने आपको ऊपर दिखाया था value given होगी। You don't have to worry about that. ठीक है, you don't have to worry about that. So I right now, because I have actually Gurmeet Kaur right now, SK Sharma and Gurmeet Kaur, so I don't have JK Tukral, so I'm not very sure मैं कह भी नहीं सकती उसमें 10% वाला है कि नहीं है। But please note what I'm saying is tables, हाँ बोलो। मैम सिर्फ 8% तक, 10% हो सकता, पॉसिबल है, कोई बात नहीं। हाँ हो सकता है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट चिंता नहीं करो, आपको बुक नहीं मिलेगी पेपर में आपको लॉग टेबल मिलेगी, तो उसमें होगी, या तो उसमें होगी लाइक आई सेड। अगर वैल्यू नहीं होगी तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस मच, जैसा कि मैंने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ दिखाया था, तो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। लेट मी शो यू। ये जो क्वेश्चन था यहाँ, ये मैंने डाला था ना, गिवन दैट दिस इज इक्वल टू, ऐसे दिया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो मे बी उस बुक में नहीं है वो वैल्यू, डजंट मैटर। If you will have the log tables, उसमें वो value होगी नहीं, question में दिया होगा। Is it clear? Okay, so I am winding up by saying just in the previous class and today what we have done, we have majorly done the application of ordinary annuity, beginning with the amortization of loans, जहाँ पे हमने present value के formulas use किए। Secondly, हमने किया bond valuation, again present value का formula use किया, and finally हमने किया sinking fund, again future value का formula use किया ordinary annuity का। Now, क्योंकि मैं कल जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एन्युटी ड्यू। आई जस्ट गिव यू अ बेसिस ऑफ दैट एंड देन वील मीट टुमारो। बेसिस सिर्फ इतना है, एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी में सिर्फ इतना फर्क है। ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है, पेमेंट इज एट द एंड ऑफ द पीरियड। अगर आपको याद होगा जहाँ पे आपको दिया था -k+1 वाली बात की, +1 हो रहा था, तो विच ऑल्सो आपको हिंट देती हूँ, एन्युटी का मतलब होगा +1 की जगह -1 हो जाएगा, विच मीन्स म्यूट कर दो भाई, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है कहीं से। सो एन्युटी ड्यू विल बी +1 की जगह वो -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पेमेंट विल बी एट द बिगिनिंग। आई विल रीड आउट अ क्वेश्चन फॉर यू बाय द वे, जस्ट टू गिव यू द आइडिया ऑफ एन्युटी ड्यू। सिंकिंग फंड में ऐसा हो सकता है, या और भी जो क्वेश्चन होंगे एन्युटी ड्यू के, आपको पता कैसे चलेंगे कि वो एन्युटी ड्यू के हैं? सबसे बड़ी बात ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में मुझे फॉर्मूला लगाना कौन सा है, ऑर्डिनरी का या एन्युटी ड्यू का। So I am giving you an example. Just listen to it very carefully and tell me how did you get to know that you are using annuity due. That will be all for today. So listen, Mr. Ranbir plans to build his house after 8 years at a cost of 50 lakh. Send his son to UK for higher studies 12 years hence, for which he anticipates the cost at that time will be 12 lakh. How much should he save in the beginning of each year to accumulate the required amount at the end of 8 years and 12 years if the rate of interest is 10% per annum effective? मैंने आपको पहले ही बोल दिया एन्युटी ड्यू लगाना है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा इट इज एन्युटी ड्यू? एनीवन? इफ यू हर्ड इट क्लियर? हाँ बोलो। The beginning word. It said very clearly how much should he save in the beginning of each year.
सो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले देखना भाई कहीं एट द एंड तो नहीं लिखा, कहीं इन द बिगिनिंग तो नहीं लिखा। एट द एंड लिखा है तो ऑर्डिनरी एन्युटी है, इन द बिगिनिंग लिखा है तो एन्युटी ड्यू है। लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, अगर कुछ भी नहीं लिखा एट द एंड है कि इन द बिगिनिंग है, तब क्या करोगे? End. Yes, तब the assumption is at the end, which means ordinary annuity का formula लगाओगे। With this, I am winding up the class. If there is any doubt, please ask. Any question? So I guess that's it. Fine then, I'm stopping the recording and we'll meet tomorrow. I'll update you about the time and I'll share the recording with you very soon. Okay then, bye-bye everyone. Thank you all. Yeah, bye. Thank you.